Good evening, all of you. Can you come on the screen now, please? So we were doing the chapter electricity, isn't it? We were doing the chapter electricity. So we will continue with that. It will take time, might be 2-3 more classes it will take. So very, very important that we all have to concentrate on these things. All right, Akshita is there. So let us go ahead. हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था से कैसे करंट प्रोड्यूस होता है. तो let us once again try to understand. I gave you a very simple method of simple voltaic cell. Simple voltaic cell में what happens, उसका अगर nutshell निकालें तो what happens, let us have a look. Just a second, I'll admit everybody. Some more are joining. Okay. So now here we go. We were doing simple voltaic cell and we were trying to see the production of the current. Have a very good look on what I am doing. You will get to understand everything nicely. All right. Now this is the case of a simple voltaic cell. All right. A simple voltaic cell is like this. This end is the positive end. Now simple voltaic cell से हम लोग अब आ गए actually में dry cell के तरफ. This is the working is same as simple voltaic cell. So this is a dry cell. Now here there is positive charge. This brass seal is there, brass seal, and there will be negative charge over here. So its terminals are having a potential difference. Its terminals are having a potential difference. इनका टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. There is a wire. All right. There is a wire. And if I join these two ends through a wire, let me try to make it little thicker wire. All right. I'll make a thicker wire. So if I join these two terminals, and if I actually have, if I have to construct, say for example, a bulb here, and now what happens? So this is a complete electric circuit. So the bulb will glow. Why the bulb will glow? Because electron from low potential will start drifting. Electrons from low potential will start drifting and moving to, after passing through this, they will start going this way and they will go to the positive terminal. And this is what is flow of electric current. ये तो cell है. Cell is a device which converts chemical energy to electrical energy. यानी यहाँ electron का movement is being generated through chemical reactions. All right. So this is what is a cell. So a cell is a device which converts chemical energy to electrical energy. A cell is a device which converts chemical energy to electrical energy. All right, पहला चीज तो ये समझ गए. अब क्या है? In a cell, there is a negative terminal
which is at low potential and a positive terminal which is at high potential. तो क्लियर है, हाई पोटेंशियल. पोटेंशियल का डेफिनेशन भी सीखे हैं कि द वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज. तो जब पॉजिटिव चार्ज लाइएगा तो ऑब्वियस है, जब पॉजिटिव चार्ज लाइएगा पॉजिटिव की तरफ तो रिपल्शन के चलते ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हाई पोटेंशियल. और नेगेटिव की तरफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाइएगा, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अपने से खिंचा जाएगा, यानी कम काम करना पड़ेगा. इसीलिए नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल लो होता है और पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल हाई होता है. सो एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल मतलब होता है स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट इज अ सेल. सो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. दैट मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. if we say direction of electric current, so electrons will move from low potential to high potential. So this is the direction of flow of electron. But if we say direction of conventional current, the conventional direction of current is just opposite. It will flow from high potential to low potential. So ये जो पतला वाला है वो direction of flow of electric current दिखा रहा है. So direction of flow of electric current is from इलेक्ट्रिक के बदले पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक लूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स. is from low potential to high potential, whereas direction of conventional direction of current, whereas direction of conventional current is from HP high potential to low potential. जिन मटेरियल के थ्रू करंट बहता है उन मटेरियल्स को कहते हैं कंडक्टर, और जिनमें नहीं बहता उनको कहते हैं इंसुलेटर. ये एक सर्किट है. दिस इज अ सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट which contains of an electrical source, then it contains of an electrical device, and it contains a conductor. Sometimes there will be a switch. Sometimes there will be a switch. कहीं कहीं पर स्विच होगा, और स्विच हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ लगा दीजिएगा. स्विच को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ लगा दीजिएगा. यहां पर एक स्विच होगा. ऑलराइट, ये स्विच रहेगा और स्विच को आप ऑन ऑफ कीजिएगा तो करंट पास करेगा या नहीं करेगा. एक स्विच रहेगा, स्विच को आप ऑन ऑफ कीजिएगा तो करंट बहेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये तो पहला चीज सीखे. और हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबॉलिक रूप में बनाते हैं. सिंबॉलिक रूप में हम लोग, जैसे ये बैटरी है तो हम यहां पर बैटरी में हम एक बड़ा वाला को प्लस लेते हैं और छोटा वाला लेकिन थिक को माइनस लेते हैं. फिर हम लोग दोनों को सटाते नहीं है, प्लस माइनस हो गया. अब हम कंडक्टर दिखाते हैं. कंडक्टर में ऐसे गया, फिर ऐसे नीचे गया, यानी ये कंडक्टर है, फिर ऐसे गया
और हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जैसे यहां बल्ब है, बल्ब को हम रेसिस्टर के जैसा बनाते हैं। रेसिस्टर ऐसे ऐसे होता है और यहां पर ऐसे कर दिए तो बल्ब जैसा लगने लगा। फिर नॉर्मल तार निकला आगे गया। फिर स्विच कैसे बनाए भाई? तो स्विच बनाने के लिए क्या होगा? स्विच बनाने के लिए प्लस माइनस ऐसे दिखा दिए। अभी यहां पर ये ऑफ है क्योंकि बीच में देखिए कुछ नहीं, लेकिन अगर बीच में आप एक डॉट दे दीजिएगा तो वो ऑन स्विच हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में ऐसा ही बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को। नॉर्मली ये नहीं रहता है, ये ऐसे रहता है। रेसिस्टर कहते हैं बल्ब को। अगर बल्ब दिखाना रहता है तब हम उसको घेरते हैं, नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जो है एक रेसिस्टर के तौर पर ही काम करता है। कोई भी। सो दिस इज व्हाट इज हाउ इट इज डन। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम में मिनिमम इतने चीज रहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिवाइस विच मेजर। एक और चीज याद रखिए, जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाइए तो स्विच लगाना है तो हमेशा वो पॉजिटिव एंड और अप्लायंस के बीच में रहेगा, कभी भी नेगेटिव साइड से नहीं रहेगा। पहला चीज ये याद रखना, स्विच को हमेशा इधर लगाइएगा इस साइड से। प्लस अगर प्लस इधर से तो फिर इधर लगाना पड़ेगा, ये पहला चीज है। हमारा चूंकि प्लस इस साइड रखे हुए थे इसलिए हमने ऐसा लगाया। तो ये आपको आना चाहिए। इसको मैं कोई भी एक बच्चा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉब्ली श्रव्या लेके इसको ग्रुप में भेजिए प्लीज। ऑलराइट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ग्रुप पे। यस सर, सेंड। ओके, नाउ सी बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। तो कितना फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, अगर हम मेजर करना है हमें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इन कूलम्स। कल मैंने इसको बताया था थोड़ा सा आप लोगों को। चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाय टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, दैट मीन्स टाइम। ऑलराइट, ओके, सो ये हो गया। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? तो कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसका यूनिट होता है एम्पियर, या वो कहां से आता है? चार्ज का होता है कूलम्ब, और
टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड, या कभी कभी होता है C S to the power 1 like this. ऑलराइट, इसको हम लोग को समझना, ठीक है. सो दिस इज द केस. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही है. अब करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं एमीटर. एमीटर बता देता है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ दीजिएगा. आई मीन टू से तार के पॉजिटिव नेगेटिव में. मान लीजिए हमको एमीटर फिक्स करना है तो मैं यहां फिक्स करूंगा. ऐसे डिनोट, इसको भी आप सिर्फ कैपिटल ए लिख के टेक्स्ट के जैसा दिखा सकते हैं. आ गया, सॉरी ये कैपिटल में होगा. ऐसा एमीटर. तो ये सर्किट में एमीटर. एमीटर आल्सो इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द वायर. सो द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर. And it is always connected in सीरीज. ये कॉम्बिनेशन में बताऊंगा सीरीज. दूसरा चीज है कि आपके बैटरी, जो दोनों बैटरी के बीच में, दोनों के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज इसको, तो उसका भी एक मशीन होता है. द डिवाइस to measure potential difference is called voltmeter, and it is connected in parallel. ठीक है, लेट अस सी. पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है? सर्किट को एक ऑल्टरनेट रास्ता रहे जिससे कि करंट जाए. कहने का मतलब देखिए, एक रास्ता से करंट जा रहा है बल्ब के थ्रू, और एक रास्ता से करंट वोल्ट मीटर के थ्रू जा रहा है. तो याद रखना है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और प्लस को प्लस एंड ऑफ वोल्ट मीटर से ज्वाइन करेंगे और माइनस को माइनस एंड से, इस तरह से. जबकि एम मीटर में होगा, अगर वोल्ट मीटर से स्टार्ट हुआ प्लस, तो एम मीटर में माइनस, और फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, और फिर लास्ट में माइनस, लाइक दिस. सो दोस थिंग्स आई विल एक्सप्लेन. बट ये चीज जानना, कनेक्शन हम बताएंगे प्रैक्टिकल करके आपको. बट ये चीज जानना हम लोग, ये कौन सा डिवाइस जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है उसका नाम है वोल्ट मीटर, और कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को नापता है उसका नाम है एम मीटर. कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ऑलराइट, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, whereas वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. ये बातें आज पहले मैं आपको बताना चाह रहा था. ऑलराइट, ये पहले मैं आपको बातें बताना चाह रहा था. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? इसका हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर श्रव्या भेज दीजिए इसको ग्रुप में.
Have you sent? Sugar? Yes, sir. Are you there? Yes. Okay. ओके बच्चों, तो ये तो अभी पहला चीज हो गया। अब आप लोग खुद से अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस से, जिंदगी के एक्सपीरियंस से बताएंगे कि अगर आप नॉर्मल जिंदगी के एक्सपीरियंस से बताएंगे तो आप लोग खुद बताना है। यू शुड टेल मी कि आप लोग कभी ऐसा हुआ है कि कोई घर में अचानक से चिल्लाने लगा, अरे वोल्टेज हाई हो गया, वोल्टेज हाई हो गया। कभी घर में ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा कि वोल्टेज हाई हो गया, किसी को, कोई बच्चा को? अरे किसी घर में ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है? Yes, sir. घर में Yes, sir. घर में रहता है कि नहीं? हैं जी, घर में रहते हैं आप लोग? ओके भाई, सब लोग स्क्रीन पर। आप लोग घर ही में रहते हो ना? दिल्ली जैसी मैं बात करता हूँ, वहां का लैंग्वेज सही है। आप लोग घर पे तो रहते हो सभी लोग? ओके, तो घर पे आपकी बिजली भी होगी। पटना ऐसा तो नहीं है जैसे सुनते हैं कि वहां पर गांव देहात के जैसा बारिश होते रहती है, सड़क पर जानवर चलते रहते हैं, झोपड़ी होती है, ऐसी तो बात नहीं है ना आप लोगों के साथ। पटना में तो हम लोग तो इसमें रहते हैं, शहर में तो क्या होता है? शहर में तो बिजली होती होगी। आप लोग को सच बताऊं कि हम लोग का जब यंग एज था तो मोस्ट प्रॉब्ली उस समय बहुत ज्यादा बिजली कटता था, लाइन कटता था। अभी तो आप लोग के पास नहीं कटता, प्रिविलेज्ड जनरेशन नहीं करता। हम लोग तो मोमबत्ती में जला के पढ़ते थे तो लाइन, लेकिन वोल्टेज कभी हाई होता होगा पक्का, या लो हो जाता है। वोल्टेज हाई होने से क्या होता है, एक एक जन कर करके अपना सब गायब होने लगता है, स्क्रीन से गायब होने लगता है। सुहाना कहाँ है आप? तो आप बताइए सबसे पहले, लेट मी सी, ऐश्वर्या आप बताइए, वोल्टेज हाई हो गया तो क्या होता है घर में? वोल्टेज हाई का मतलब? यस कावेरी बताइए। शॉर्ट सर्किट। नहीं, पंखा तेज चलने लगेगा, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग फास्टर। कस के चलने लगता है, और फ्रिज अचानक आवाज करने लगेगा, टीवी चढ़चढ़ाने लगेगा, थोड़ा जल भी सकता है, स्टेबलाइजर उड़ जाएगा। ऐसा आपको खुद से बताना चाहिए कि एक्चुअली में क्या होगा अगर ऐसा आपको खुद से बताना। एक दिन के घर में लाइन चला गया, सारे घर में, और ऐसा आपको खुद से बताना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बात में तो वो भी अपने इलेक्ट्रिसिटी में हम भी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। अब देखिए ऐसा इसलिए होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज हाई का मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इसको कॉमन सेंस से एनालाइज कीजिए। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बढ़ जाता है। मतलब क्या? एक जगह पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और एक जगह पॉजिटिव चार्ज बहुत, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा, तब ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मतलब हाई लो के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा। यानी एक तरफ बहुत कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो बहुत हाई तेजी से करंट भागने लगेगा। तो इसीलिए ओम अंकल थे, उन्होंने ये, ओम अंकल इंग्लैंड में रहते थे, जिसका आप लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। यस सर। ओम अंकल इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने एक दे दिया, एक व्हाट टू से लॉ। तो कॉमन हम लोग भी बता सकते थे, बेचारे पहले जन्म लिए थे तो उन्होंने ये पहले कर दिया। इसका कॉमन सेंस का बात है बच्चों। मान लीजिए कहीं पर एक सेल है, एक सेल है कहीं पर, तो उस समय जितना करंट बहेगा, उस समय जितना करंट बहेगा थ्रू द वायर, या बल्ब के गुणों के बारे में मैं बात करता हूं, उस समय जितना करंट बहेगा, मान लीजिए 6 वोल्ट का है करंट बह रहा, करंट बह रहा। अब बच्चों आपको खुद से बताना है मुझे कि यही सेम वायर हम रखते हैं, वायर सेम रखते हैं, हम इस बार क्या करते हैं, 6 कस के बिजली चमकेगी, 6 + 6 यानी हम अब 12 वोल्ट का सेम बल्ब में लगा दिए करंट सप्लाई। आप खुद बताइए आपके एक्सपीरियंस से
दोनों बल्ब के ग्लो में क्या डिफरेंस होगा? एक्सपीरियंस से दोनों बल्ब के ग्लो में क्या डिफरेंस होगा? First one will glow lighter and second one will be glowing faster. Okay. First one will glow dimmer and the second one will glow brighter. कॉमन सेंस का बात है, यहाँ 6+6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ज्यादा है और यहाँ पर ये, तो what I mean to say is that means कि more the voltage, more is the rate of flow of current. ठीक है, दोनों को ध्यान से देखिएगा, सब लोग बताइएगा, फिर से मैं पूछ रहा हूं, दोनों फिगर को मन में लगाइए, मन में। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक जगह 6 वोल्ट है और एक जगह 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट वाला में आप कह रहे हैं ज्यादा होगा ना? 6 वाला में ज्यादा बहेगा है कि 12 वाला में करंट ज्यादा बहेगा? सर 12 वोल्ट। निशा आप कहिए। सर 12। सुहाना? यस सर 12 में। आदित्य नारायण? 12। एक और है कोई बॉयज में, कोई है? अक्षत है? ओके, सो 12। अक्षिता 12 है। अब हम पूछते कि नहीं, हम यहां पर प्लास्टिक वायर दिए हुए थे और यहां पर सोना का वायर, तब तो इसमें बहेगा, इसमें तो बहेगा ही नहीं। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते तो हमको दोनों वायर सेम रखना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि 12 में ज्यादा बहेगा और 6 में कम बहेगा। तो इसी चीज को ओम अंकल ने कहा, ओम साहब ने इसी चीज को कहा, ओम साहब ने इसी चीज को कहा कि कीपिंग द ओम्स लॉ, जिसको कहते हैं ओम्स लॉ, क्या होता है? कीपिंग द फिजिकल कंडीशन द सेम, मतलब वायर वगैरह नहीं बदलेंगे, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन द सेम, the rate of flow of electric current is directly proportional to the potential difference to the potential difference across the terminals of a conductor। ये ओम साहब ने कहा। Keeping the physical condition the same, the rate of flow of electric current is directly proportional to the potential difference across the terminals of a conductor। ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V is directly proportional to I मतलब करंट होता है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं V is directly proportional, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन देते हैं, V is directly proportional to potential difference is directly proportional to current। और अगर हम इक्वल टू का साइन देंगे तो इक्वेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। V is equal to IR, V is equal to IR, where R is called the resistance and it is a constant of proportionality।
तो हियर I is called the resistance and it is constant of proportionality. ये याद रखना, R जो है वायर का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है? Did you all understand this? तो इसको कहते हैं ओम्स लॉ, इस इक्वेशन को कहते हैं ओम्स इक्वेशन. It gives the relationship between potential difference. It gives the relationship between potential difference, electric current and resistance of a wire. है ना? यानी ये लॉ करंट बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से, लेकिन हाँ एक चीज गवर्न करता है इसको, एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस. एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस. डिड यू अंडरस्टैंड? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान दिया जाए. हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जस्ट अ सेकेंड, आप लोग भी इसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ग्रुप में प्लीज एक जन. Yes, sir, done. ओके, सो दिस इज डन. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यानी V इज इक्वल टू आई आर, यानी किसी भी तार में, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, और इट विल आल्सो डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस. ऑलराइट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. और आपस में दोनों करंट और रेसिस्टेंस आपस में इन्वर्स होगा, इसके बारे में समझा जाएगा हम लोग. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेसिस्टेंस क्या होता है. बट ओम्स लॉ में ओम्स इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. प्लीज मे आई हैव अ लुक ऑन हु आर द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लास, especially this Akshita. Can you come on the screen? Ashwarya, who all are the guys attending the class? Ashwarya is there. Vanshika I can see. Who is this child? Who is this child with a number 48671I3? Who is this child? Please, I will remove you in case you will not say. What is your name? You are telling start. Tanay. Who is that? Tanay. Tanay. Why you start the video later? 1 मिनट के आप आइए, वीडियो पर आ जाइएगा, ट्राई कीजिए. आप क्या अच्छा ठीक है, चलिए. ओके, हाँ, now you come. Vanshika, where are you? Vanshika is there. Let me know who all of the children was there. Okay, चलिए. So अब हम लोग चल रहे रेसिस्टेंस पर. तो देखिए बच्चों, रेसिस्टेंस का एक्चुअल, रेसिस्टेंस का नॉर्मल मतलब आपके दिमाग में क्या लगता है? ये वर्ड सुनने से, रेसिस्टेंस सुनने से, क्यों मेरे बात को रेसिस्ट कर रहे हो तुम? कौन बच्चा है तने? आ ही नहीं रहा है स्क्रीन पर, मेरे बात को रेसिस्ट कर रहा नहीं. रेसिस्ट करना मतलब क्या होता है? टू रेसिस्ट मीन्स व्हाट? टू रेसिस्ट मीन्स टू अपोज. टू अपोज, रेसिस्टेंस का लिटरल मीनिंग होता है टू अपोज. When I am telling something, then you are opposing, resistance. अगर मान लो आदित्य को कान पकड़ के कोई मॉनिटर प्रिंसिपल के रूम में ले जा रहा है तो रेसिस्ट करेगा, नहीं जाएगा. फ्रिक्शन इज अ रेसिस्टिव फोर्स. फ्रिक्शन अपोजेस एनी काइंड ऑफ मोशन, इट रेसिस्ट मूवमेंट. तो करंट फ्लो में वायर रेसिस्ट करता होगा. क्यों करंट फ्लो को वायर रेसिस्ट करता होगा सुहाना? करंट फ्लो है क्या? अभी हम समझाएंगे तुरंत. व्हाट इज फ्लो ऑफ करंट? को जब करंट मैंने क्या समझते, क्या हो रहा है? कौन बताएगा? जो तेज बच्चा बता देगा, अभी तुरंत बताए. व्हाट इज करंट फ्लो? सर, करंट का पास होना. एक तो बच्चा को हम दिए थे, एक बार हिंदी पढ़ाते थे जब तक, अनुशासन पर लेख लिखिए और अनुशासन का मतलब समझाइए. तो लिखा अनुशासन बहुत अच्छा शब्द है. अनुशासन में रहने से सब लोग अनुशासित रहते हैं, इसीलिए अनुशासन हमारे जिंदगी में बहुत अच्छा है, इसीलिए अनुशासन होना चाहिए. अगर हम कोई चीज तोड़ देते हैं तो अनुशासन होता है, नहीं तोड़ते तब भी अनुशासन होता है. इलेक्ट्रिक करंट इज करंट. अरे वाह, सारा रामायण पढ़ के पता ही नहीं है कि सीता कौन थी. यस, टेल मी. Flow of electrons from the low potential to the high potential. इससे दो चीज पता चलता है. एक चीज पता चलता है, जब हम आप लोग को टॉन्टिंग में बात करते हैं तब आप लोग का आक्रोश बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तब आप लोग बोलते हैं. हाँ, यानी हमको चैलेंजिंग वे में हमेशा बात करना पड़ेगा. हमको चैलेंजिंग वे में हमेशा बात करना पड़ेगा. या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तब ना, तो इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू फ्लो करता है. तार भी तो खुद एटॉम से बना हुआ है.
तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हो तो टकराते टकराते जाता होगा सब चीज से। एटॉम के सोचो, एक वायर है, ये वायर है, ये गर्म क्यों हो जाता है? एक वायर, इसमें अगर इसमें करंट बहेगा, आपका मोबाइल गर्म क्यों हो जाता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वो टकरा रहा है पार्टिकल से, तो फ्रिक्शन हो रहा है, मूव कर रहा है, तो गर्म होगा, तो पकड़ लेते हैं हम लोग, हीट प्रोड्यूस होता है करंट से, पकड़ा जाता है तुरंत में। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of current through it. यहां लिख देता हूं मैं। Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of current through it. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो and resistance will depend on क्या चीज पर डिपेंड करेगा? रेसिस्टेंस, एक मिनट मैं पहले स्टॉप शेयर कर रहा हूं और आप लोग फिर से लिंक तुरंत ज्वाइन कीजिए। एंड कर रहा हूं, तुरंत इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है?